So this is the next question. Question number 3. Find the equation of the straight line upon which length of perpendicular. So the moment we saw this word length of perpendicular, we understood that it is talking about small p, and when small p comes into picture, we will talk about the normal form. So once again, we will just try to make a rough diagram to make our understanding more clear, because the expectation that they will directly give us alpha and p, it is very less. We shall not expect that कि हमें directly alpha और p का value दे देंगे. Definitely they have not given us alpha directly. So question में हमें p का value दिया हुआ है. What is the p value? It is 2 units. So we can write the length of the perpendicular, it is 2 units. So the first data, small p is equals to 2 units. Now what is the second data? It says the slope of this perpendicular is 5 by 2. Slope का मतलब होता है tan of any angle. So इस perpendicular ने कितना angle बनाया था alpha? So basically what they are saying, tan of alpha is equals to 5 by 12. We were looking for only alpha, but instead they have given us tan alpha. इस बात को समझोगे, what is the meaning of this sentence? That slope of this perpendicular, स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर का जो एंगल था एक्स एक्सिस के साथ, उसका स्लोप निकाल दिया है, दैट इज उसको टैन लगा दिया है. वी नो जब एंगल थीटा होता है तो स्लोप क्या होता है? टैन थीटा. जब एंगल अल्फा है तो स्लोप क्या होगा? टैन अल्फा. सो ऑब्वियस. सो टैन अल्फा का वैल्यू 5/12 हमें दिया गया है. सो नाउ सी द क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन दे हैव प्लेड अ नाइस ट्रिक विद द डेटा. वी वर लुकिंग फॉर अल्फा बट दे हैव नॉट गिवन अस अल्फा, दे हैव गिवन अस टैन अल्फा एंड परपेंडिकुलर वैल्यू इज गिवन. अगर हम रिकॉल करेंगे कि हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. This is the required equation we have. Now we can also play a trick with it, that we were first of all looking for alpha, but now can we directly find out cos alpha and sin alpha from this tan alpha? That will be much easier. So अगर cos alpha चाहिए, sin alpha चाहिए, then let us not focus only on alpha. tan alpha अगर दिया है तो हम डायरेक्टली cos alpha निकाल लेते हैं, because anyhow equation में हमें cos alpha चाहिए, anyhow equation में हमें sin alpha चाहिए. Now how do we find tan alpha, say cos alpha and sin alpha? That we will see. So let us say this is tan alpha 5/12. स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan square alpha is equals to 25/144. Now what is sec square alpha? It is 1 plus tan square alpha. So it becomes what? 1 plus 25/144. That is 169/144. So when sec square alpha is this, what will be sec alpha? Sec alpha will be under root. So let us take the positive value. We got 13/12. When sec alpha is 13/12, what is cos alpha? Cos alpha is 12/13. जो एक वैल्यू चाहिए था वो आ गया. Cos alpha का वैल्यू आ गया 12/13. Now once we have cos alpha is equal to 12/13, यहाँ से हम sin alpha कैसे निकालते हैं? So can we write sin square alpha is equals to 1 minus cos square alpha, that is 1 minus 12/13 per square. And what next? So this is 169 minus 144, we will get 25/169. So we can write directly sin alpha is equals to 5/13. These two values we were looking for. Cos alpha 12/13 we got. और ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है जो हमने क्लास 10 में सीखा है कि tan अल्फा अगर दिया है तो वहां से हम sin अल्फा cos अल्फा कैसे निकाल सकते हैं. And cos alpha we have got 5/13. Now let us put these values in this equation, because already p value we have got with us. So what is the final answer to this? X multiplied by cos alpha, that is 12/13. Y multiplied by sin alpha, that is 5/13. This is equals to p, and p value is 2 units. So 12x plus 5y is equal to 26, required equation. So let us now proceed with the second sum, which says find the value of theta and p if the equation x cos theta plus y sin theta is equal to p is the normal form. Now you must be wondering कि हमने जो इक्वेशन अभी तक देखा था वहां पे थीटा नहीं था, अल्फा था. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए
स्पेसिफिकली बता दिया है कि इधर जो थीटा यूज हो रहा है ये वही अल्फा ही है। सो पर्टिकुलरली फॉर दिस इक्वेशन, देखो उन्होंने जनरल वे में क्वेश्चन नहीं दिया, उन्होंने इक्वेशन को डिफाइन भी कर दिया है कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p में हमने थीटा यूज किया है, अल्फा यूज नहीं किया है, और तुम्हें वो थीटा ही निकालना है, व्हिच क्लियरली इंप्लाइज कि थीटा और p कुछ अलग अलग नहीं है पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे वो चाहते हैं, अगर इक्वेशन को ऐसे लिख सकते थे x cos कैपिटल A y sin कैपिटल A इज इक्वल टू p, मतलब ये a क्या है, दिस एंगल a इज नथिंग बट दिस एंगल कैपिटल A। परपेंडिकुलर ने स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बनाया उसी को हम अल्फा बोलते हैं, उसी को इस केस में हम ए बोल रहे हैं, और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसको हम थीटा बोलेंगे, दैट्स इट। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये थीटा क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया गया है, दैट लाइन इज द जनरल लाइन √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इस लाइन को सबसे पहले हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। So √3x plus y is equals to -2. That is the first thing. Then what do? We go for dividing with the factor. और factor अगर निकालोगे, so same concept. Factor is equals to under root of coefficient of x का square plus coefficient of y का square. So once again the factor value we have got. पूरे इक्वेशन को जब हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो what do we get? It is √3/2 x plus 1/2 y is equals to -1, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी हमने 2 से डिवाइड किया तो -2 डिवाइडेड बाई 2 इट बिकम्स -1। नाउ हमें एक चीज हमने नोट किया था कि जब कभी भी राइट हैंड साइड में -1 आ जाए, वी कांट कीप इट सिंपली लाइक दिस। अगर राइट साइड में प्लस आता है तो अच्छी बात है, माइनस आए तो हमें पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो ऑन डूइंग सो व्हाट वी गॉट, -√3/2x minus half y is equals to 1। अब ये जो भी इक्वेशन आया, हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी। सो इन द क्वेश्चन दे आस्क्ड अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी, सो पी वैल्यू इज क्लियर, सो वी कैन राइट पी वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर अगर करेंगे तो ये किसका वैल्यू है, दिस इज cos थीटा व्हिच इज -√3/2, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज sin थीटा व्हिच इज -half। सो हमें cos थीटा से मतलब नहीं है, हमें sin थीटा से मतलब नहीं है, वी आर लुकिंग फॉर थीटा। अब एक चीज देख पा रहे हैं कि cos नेगेटिव sin नेगेटिव, अगर हम क्वाड्रेंट रूल की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 के बेसिक में हमने सीखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। सो इज दिस थर्ड क्वाड्रेंट वेयर ओनली tan और cot they have positive value, but you talk about sin or cos, they have negative value. Yes, we know that already. तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमें जो सिनेरियो है अवेलेबल है हमारे पास, दैट cos थीटा इज नेगेटिव, sin थीटा इज नेगेटिव, और हमें बोला है थीटा निकालने के लिए। तो एक चीज तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि व्हेन cos इज नेगेटिव, sin इज नेगेटिव, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। जरूरी नहीं है थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, या अल्फा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट अल्फा और थीटा शुड ऑलवेज बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो नॉट एट ऑल। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज cos आल्सो नेगेटिव, tan आल्सो नेगेटिव, सॉरी sin आल्सो नेगेटिव। अब क्या करते हैं, इन दोनों को करके हम tan का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो tan वैल्यू इज व्हाट, इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज -half अपॉन -√3/2। If you cancel it, you got 1/√3। देखो tan थीटा पॉजिटिव आ गया, हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इसी साइन और इसी cos नेगेटिव नेगेटिव से tan पॉजिटिव आ गया 1/√3। सो व्हाट इज थीटा, बेसिकली वी आर गेटिंग हियर 30 डिग्री। tan का कौन सा वैल्यू होता है, √3, 1/√3, इट इज 30 डिग्री। बट 30 डिग्री हमारा आंसर नहीं होगा बिकॉज 30 डिग्री डज नॉट बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 180 प्लस 30। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 ऐड किया, वी गॉट 210 डिग्री, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 7π/6। अब ये जो दो आंसर देख रहे हो ये हमारे आंसर्स हैं। पी का वैल्यू तो इजीली समझ में आ गया था 1, और थीटा के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये कि हमने जब कंपेयर किया cos थीटा नेगेटिव, sin थीटा नेगेटिव, मतलब थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें जो भी एंगल आएगा उसमें 180 प्लस करना पड़ेगा।
और एंगल कितना आया 30 डिग्री, उस 30 डिग्री को 180 के साथ प्लस किया, वी गॉट 210 डिग्री, जिसको रेडियन फॉर्म में वी विल राइट 7 पाई बाई 6. सो दिस टू बॉक्स्ड वंस आर आवर रिक्वायर्ड आंसर्स. हमें p बोला था तो p का वैल्यू 1, थीटा बोला था 7 पाई बाई 6. These are the two required answers. In the fifth question, they are saying reduce the lines. हमें दो लाइन के इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों जनरल फॉर्म में हैं, उनको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है. And how do we change in the normal form? We very well know that. ठीक है. So the first equation is 3x minus 4y plus 4 is equals to 0. इसको नॉर्मल फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं, so it becomes 3x minus 4y is equals to minus 4. We need to divide by a factor, and the factor is now root over of 3 square plus minus 4 square x minus 4 divided by root over of 3 square plus minus 4 square y is equals to minus 4 divided by same factor 3 square plus minus 4 square. So 9, 16, 25, what we got 3 by 5x minus 4 by 5x is equals to minus 4 by 5. We want a positive value, so let us multiply throughout by minus 1, and we got this. This is y is equals to 4 by 5. So that is the first equation we got in normal form. Now we are not bothered to look about the angle. Don't get confused. हमें angle बिल्कुल नहीं चाहिए. Alpha क्या है, alpha 1, alpha 2 क्या है, we are not looking for that. We just want to find to normal form. Normal form आ गया हमारा. Determine which line is nearer to origin. उसकी हम बात करेंगे. पहले let us convert the second equation, which happens to be 4x minus 3y plus 12 is equals to 0. So first thing, let us take the constant to the right hand side. It is minus 12, and once again 4, 16, 9, 25 रूट करोगे तो फैक्टर हमारा 5 ही आएगा. So 5 से डिवाइड किया, we got like this and we got like this. Once again the perpendicular on the right hand side value should be positive, तो ये नेगेटिव आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करो, we got minus 4 by 5x plus 3 by 5y is equals to 12 by 5. Now this happens to be the second normal form. अब ये जो दो shaded form हमें दिख रहे हैं, the highlighted ones, these are the required answers for the first case. The given equations को normal form में change करो. These are the required normal forms. We are not worried to find about the alpha angle. याद रखो, alpha जब बोला नहीं है तो don't put your brain in finding that alpha value. Now the second part of the question is which line is nearer to origin? मतलब इसका perpendicular distance कम है. The P1 value, let us say the first perpendicular is 4 by 5, which happens to be 0.8 unit. And the second value, second perpendicular, it is 12 by 5, which happens to be 2.4 unit. So कौन सा near है जिसका perpendicular distance कम है? So we can very well say, therefore the first line, whose perpendicular distance is 0.8 unit from the origin, is nearer to origin. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? The first line 3x minus 4y plus 4 is equal to 0. This line, the first line, it is nearer to the origin. Now a very good question. Next is this one, where you can see a complicated kind of equation is given to you, which happens to be k minus 3 into x minus 4 minus k square into y plus something k square minus 7k plus 6 is equal to 0. इस इक्वेशन में से हमें k का वैल्यू निकालना है for this 3 different cases. Okay, that part is clear to us. क्वेश्चन क्या है हमें समझ में आया, लेकिन इस इक्वेशन को समझना और ज्यादा जरूरी है कि x के साथ जो भी है, this is what? This is coefficient of x. Do not get confused. y के साथ जो भी है, y के सामने, this is what? Coefficient of y. And this fellow sitting at the end, k square minus 7k plus 6, जहां पे ना ही x है ना ही y है, ये हमारा क्या है? Constant term. So can you look at this equation like this? ax plus by plus c is equal to 0.
दैट इज सो ऑब्वियस। ये इक्वेशन हमें कैसा लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है जहाँ पे x के सामने कुछ है, y के सामने कुछ है, कांस्टेंट टर्म है, राइट हैंड साइड में 0 है। और इस जनरल इक्वेशन को हम, ये पैरेलल पैरेलल जो वर्ड देख रहे हो, पैरेलल वर्ड से दिमाग में हमारे स्लोप आता है। दो लाइन अगर आपस में स्लोप बराबर है तभी हम उनको पैरेलल बोल सकते हैं। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो गंदा सा लाइन हमें दिया हुआ है, इस लाइन का हमें स्लोप निकालना होगा। और इस लाइन को हमने कंसीडर किया ऐसा लाइन, और ऐसे लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं? वी कन्वर्ट इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? y को रखते हैं, बाकी ax और c सबको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। सेम चीज वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस लाइन। ये जो लाइन हमें दिया है इसके लिए भी हम सेम चीज करते हैं। दैट लेट अस कीप द y पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और बाकी सबको राइट में भेज दो। तो दिस k minus 3x now becomes minus of k minus 3x, एंड दिस कांस्टेंट वाला जो प्लस में था ब्रैकेट में, वो राइट साइड में जाकर के माइनस में हो गया। और माइनस ऑफ 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई रिमेनिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल ऐसा हुआ। इसके बाद माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, और तो क्या बचेगा हमारे पास? 4 माइनस के स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू के माइनस 3x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। एंड डू यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट अगर यूज नहीं करोगे क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने किया। y के सामने कुछ नहीं चाहिए होता है, तो y के सामने जो भी है उसको राइट में शिफ्ट करेंगे, तो व्हाट वी गॉट? k minus 3 divided by 4 minus k square into x. Once again have given bracket. कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? k स्क्वायर था, उसके साथ 7k प्लस 6 था, उसको भी 4 माइनस k स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। Now ये जो इक्वेशन हम देख पा रहे हैं, the one which I have boxed up, it do looks like y is equal to mx plus c फॉर्म, जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, और वहां पे x के सामने जो भी होता है उसी को हम स्लोप बोलते हैं। So can we write slope of given line is equals to k minus 3 divided by 4 minus k square. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हमने कैप्चर कर लिया फ्रॉम द इक्वेशन गिवन टू अस। The slope of the given line is k minus 3 divided by 4 minus k square. Now one by one we can solve the subparts given. Number 1, हमें बोला है parallel to x axis. So parallel to x axis का मतलब क्या हुआ कि हमारे लाइन का स्लोप और x axis के स्लोप का बराबर होगा। So can we write slope of given line is equals to slope of x axis, तभी तो पैरेलल हुआ x axis के। हमारी लाइन का स्लोप क्या है? जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड k minus 3 डिवाइडेड बाय 4 minus k स्क्वायर, एंड स्लोप ऑफ x axis आपको क्लास 1 में, मतलब डे 1 ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताया गया था, इट इज 0। हमने आज के रिकैपिचुलेशन में भी देखा। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, पैरेलल टू x axis. In the similar perspective, if we go for solving the second part, which says parallel to y-axis. So once again, what we can write? Slope of given line is equals to slope of y-axis. That is, slope of given line is k minus 3 upon 4 minus k square, and y-axis के slope को हम 1/0 बोलते हैं। अगर तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और k वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। किसी भी वैल्यू को हम इग्नोर नहीं करेंगे। सो दिस हैपेंस टू बी द आंसर फॉर द सेकंड सब पार्ट, पैरेलल टू y एक्सिस। सो पहले केस का आंसर आया k इज इक्वल टू 3 व्हेन इट वाज पैरेलल टू x एक्सिस। दूसरे केस का आंसर आया k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 व्हेन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। और ये कब हम पॉसिबल कर पा रहे हैं? व्हेन वी हैव द इक्वेशन ऑफ स्लोप, या स्लोप का जो डेटा है वो हमने ओरिजिनल लाइन के इक्वेशन से कैप्चर किया। विदाउट दैट वी कुड नॉट हैव बीन एबल टू डू दिस सम।
Lastly, we have to do one more part, that if the straight line passes through the origin, then what is the value of k? So let's take it here. That is the third subpart we are talking about. Passing through origin. Origin से pass करना मतलब the straight line is passing through origin, which clearly implies origin can be substituted in the equation. अगर एक स्ट्रेट लाइन या कोई भी कर्व, नॉट जस्ट स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व एक पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट को हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी कैन डू हियर. दैट इज इंस्टेड ऑफ x आई कैन पुट 0, इंस्टेड ऑफ y आई कैन पुट 0 वेयर इन द इक्वेशन गिवन टू अस. सो जो ओरिजिनल इक्वेशन हमें दिया है, यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो इट बिकम्स k minus 3 multiplied by 0, then 4 minus k square multiplied by 0, and then what we have, k square minus 7k plus 6 is equal to 0. Now this k minus 3 multiplied by 0 will give us 0. 4 minus k square multiplied by 0 will give us 0. So we are only left with k square minus 7k plus 6 is equal to 0. So what are we left with? That is k square minus 7k plus 6 is equal to 0. इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, so we will get the required values of x. So one factor is k minus 6, another factor is k minus 1, and what are the two values of k? 1, 6. Third subpart sorted.